are going to discuss the topic of shoulder joint, which is also known as glenohumeral articulation. अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा क्रिया अनुसार शोल्डर जॉइंट को बहुचर संधि कहते हैं बिकॉज इट परमिट्स वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट. बट रचना अनुसार शोल्डर जॉइंट को उलूखल संधि कहते हैं बिकॉज ऑफ हैविंग द कॉन्वेक्स and the concave articulating surfaces of the bones that are going to form the shoulder joint. According to modern, shoulder joint is a synovial joint of ball and socket variety, as the joint cavity is filled with the synovial fluid which provide it lubrication and also reduces the friction amongst the bone. Now the articulating surfaces of the shoulder joint. The joint is formed by the articulation of glenoid cavity of the scapula bone. This is the glenoid cavity of the scapula bone and the head of the humerus. Here, this is the head of the humerus bone. In this way, they are going to articulate and form the shoulder joint. That's why shoulder joint is known as glenohumeral articulation. Structurally, shoulder joint is a weak joint because the glenoid cavity here it is too small and too shallow to hold the head of the humerus bone, and also the head of the humerus bone is 4 times the size of glenoid cavity. Now the stability factors. The factor that are going to maintain the stability of shoulder joint is coracoacromial arch. We are going to see the coracoacromial arch on the scapula bone. This is the coracoid process of the scapula bone. This is the acromion process of the scapula bone, and there is a one ligament which is known as coracoacromial ligament, which bridges across the coracoid process and the acromion process and form the secondary socket for the head of the humerus bone. And also here it protects the head of the humerus bone. Now the another factor is musculotendinous cuff, which is known as rotator cuff muscle. We are going to discuss it later. And glenoidal labrum, which is a fibrocartilaginous rim which present across the margin of the glenoid cavity of the scapula bone here, which is total 4 in numbers. Firstly, we are going to see the capsular ligament of the shoulder joint, which is loose and permits free movement anteriorly. Anteriorly, capsule is reinforced by 3 supplemental bands known as superior, middle and the inferior glenohumeral ligament. This is another ligament which is known as superior, middle and the inferior glenohumeral ligament. There is a gap between superior and the middle glenohumeral ligament, which is a weak point of the capsule, and this is a common site for the anterior dislocation of head of the humerus bone. And medially, the capsule is attached to the scapula beyond the supraglenoid tubercle here, beyond the supraglenoid tubercle, and laterally it is attached to the anatomical neck of the humerus bone. This is the anatomical neck. This is the anatomical neck of the humerus bone. But there is a few exceptions in capsular ligament. Inferiorly, it extends beyond the surgical neck. Here, at the level of surgical neck, it extends beyond the surgical neck, and superiorly it is deficient to provide the passage for the tendon of long head of biceps brachii. Now we are going to see the coracohumeral ligament, which is the second ligament. Here, this is the coracohumeral ligament which is attached to the root of the coracoid process to the neck of the humerus bone, and it also extends to the capsule. It gives strength to the capsule. And the third ligament is transverse humeral ligament. Here, this is a transverse humeral ligament which bridges the upper part of the bicipital groove of the humerus bone. This is the bicipital groove, this is the upper part. It bridges across the upper part of the bicipital groove of the humerus, and also it provides passage for the tendon of long head of biceps brachii in this way. And now the glenoidal labrum. As I already told you earlier, it is a fibrocartilaginous rim. Here, this is a glenoidal labrum, which is a fibrocartilaginous rim which covers the margin of glenoid cavity. This is the margin. Here it covers the margin of the glenoid cavity, and it
टॉपिक इज बर्सा। पहला तो बर्सा क्या है? बर्सा जो है वो एक फ्लूइड फिल्ड सैक होता है जो फ्रिक्शन प्रिवेंट करता है। अभी जैसे हमारी जो जॉइंट्स होती है उनमें मूवमेंट होती है, तो मूवमेंट होती है तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, तो उन फ्रिक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए वहाँ पे एक फ्लूइड फिल्ड सैक होता है, उसका हम लोग बर्सा कहते हैं। अभी हमारे शोल्डर जॉइंट के पास टोटल 4 बर्सा होते हैं: सब स्कैपुलैरिस बर्सा, इंफ्रास्पैनिटस बर्सा, सब एक्रोमियल बर्सा एंड सब डेल्टॉइड बर्सा। अब हम उसे डायग्राम में देखेंगे। दिस इज अवर सब एक्रोमियल बर्सा। इसके नाम से समझ में आता है कि जो एक्रोमियल प्रोसेस के जस्ट नीचे होता है उसे हम लोग सब एक्रोमियल बर्सा कहेंगे। फिर अभी सब टेंडिनस बर्सा ऑफ सब स्कैपुलैरिस, जो हमारा सब स्कैपुलैरिस है, जैसे कि सब स्कैपुलैरिस बर्सा। अभी हमारा जो स्कैपुला है ये हमारा स्कैपुला है और इसका ये फॉसा है, तो इस फॉसा में जो मसल होती है यहाँ से अराइज होती है उसे सब स्कैपुलैरिस मसल कहते हैं, जो आ करके हमारे ह्यूमरस के लेसर ट्यूबरकल में इंसर्ट होती है, तो इस मसल को हम सब स्कैपुलैरिस मसल कहते हैं। और यहाँ पर जो बर्सा इंसर्ट होता है या फिर प्रेजेंट होता है उसे हम सब स्कैपुलैरिस बर्सा कहेंगे। लाइकवाइज हमारा जो इंफ्रास्पैनिटस बर्सा है, जैसे कि हमारा सब स्कैपुलैरिस बर्सा हमारे फॉसा ऑफ स्कैपुला से अराइज होता है, वैसे ही इंफ्रास्पैनिटस मसल जो है वो डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द स्कैपुला, यहाँ पे स्पाइन के जस्ट नीचे से जो पूरा एरिया है ये पूरा एरिया में कवर करती है इंफ्रास्पैनिटस मसल, यहाँ से ओरिजिनेट होकर के हमारे ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस, यहाँ पे एक मसल इंसर्ट होती है जिसे हम इंफ्रास्पैनिटस मसल कहेंगे, और यहाँ पर जो हमारी बर्सा प्रेजेंट होगी उसे इंफ्रास्पैनिटस बर्सा कहेंगे। नाउ रिलेशन टू द शोल्डर ज्वाइंट। अभी जो हमारा शोल्डर ज्वाइंट है उसके सुपीरियरली, इंफीरियरली, एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली 4 रिलेशन होते हैं, वहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। सुपीरियरली जो है वो कोरेको एक्रोमियल आर्च, सब एक्रोमियल बर्सा, सुप्रास्पैनिटस एंड डेल्टॉइड मसल्स, ये सुपीरियरली प्रेजेंट होती है। इंफीरियरली लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकाई, एक्सिलरी नर्व, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। एंटीरियरली सब स्कैपुलैरिस मसल, कोरेको ब्रेकियालिस मसल, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकाई एंड डेल्टॉइड मसल। पोस्टीरियरली इंफ्रास्पैनिटस, टेरेस माइनर एंड डेल्टॉइड मसल। अभी हम डायग्राम में देखते हैं। ये हमारे डायग्राम का सुपीरियर एस्पेक्ट, इंफीरियर एस्पेक्ट, एंटीरियर एस्पेक्ट एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट। अभी सुपीरियरली ये जो है ये हमारा एक्रोमियल प्रोसेस ऑफ स्कैपुला है और ये कोराकॉइड प्रोसेस है, तो ये दोनों एक आर्च फॉर्म करते हैं जिसको हम कहेंगे कोरेको एक्रोमियल आर्च। तो सबसे ऊपर जो हमारा जो मतलब प्रेजेंट है सुपीरियर एस्पेक्ट में वो हमारा कोरेको एक्रोमियल आर्च होगा। फिर डेल्टॉइड, जो हमारी डेल्टॉइड मसल होती है ये हमारे शोल्डर जॉइंट को पूरा 3 एरिया में पूरा कवर करती है, एंटीरियर, सुपीरियर एंड पोस्टीरियर। इंफीरियरली जो है हमारा डेल्टॉइड मसल वो एब्सेंट होता है, तो फिर हमारा कोरेको एक्रोमियल आर्च, उसके बाद डेल्टॉइड मसल, फिर डेल्टॉइड मसल के बाद हमारा आता है सब एक्रोमियल बर्सा, सब एक्रोमियल बर्सा एंड सुप्रास्पैनिटस मसल। ये 4 रिलेशन हमारे सुपीरियरली होते हैं। फिर अभी एंटीरियरली देखेंगे तो हमारा आता है सब स्कैपुलैरिस मसल, ये जो है ये हमारी सब स्कैपुलैरिस मसल। फिर उसके बाद हमारे आती है कोरेको एक्रोमियल, कोरेको ब्रेकियालिस एंड शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकाई। तो ये जो हमारी मसल यहाँ पे जा रही है ये हमारी दोनों मसल जो है वो एक साथ इंसर्ट होती है कोराकॉइड प्रोसेस में, तो इसीलिए दोनों का साथ में नाम दिया हुआ है, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकाई एंड कोरेको ब्रेकियालिस। एंड अभी इंफीरियरली जो है हमारा लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकाई, ये हमारा लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकाई, ये और एक एक्सिलरी नर्व और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ये जो है हमारी इंफीरियरली रिलेटेड होती है। फिर अभी पोस्टीरियरली देखेंगे तो हमारी 3 मसल्स हैं। पहली है इंफ्रास्पैनिटस मसल, ये हमारी इंफ्रास्पैनिटस मसल, टेरेस माइनर मसल और ये डेल्टॉइड, ये 3 जो है मसल हमारी पोस्टीरियरली आएंगी। अभी मूवमेंट में फर्स्ट हमारा है पहले तो जो हमारी मूवमेंट होती है उसमें 2 टाइप की मसल्स इन्वॉल्व होती है, मेन मसल और एक्सेसरी मसल। फर्स्ट हमारा आता है फ्लेक्शन जो होता है ये हमारे बॉडी के टूवर्ड होता है और ये बिटवीन द आर्म एंड फोर आर्म होता है जिसमें एंगल रिड्यूस होता है, तो उस मूवमेंट को हम फ्लेक्शन कहेंगे। इसमें जो दो मेन मसल है, क्लेविकुलर हेड ऑफ द पेक्टोरालिस मेजर एंड एंटीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड। एक्सेसरी मसल है कोरेको ब्रेकियालिस, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकाई।
अभी ये जो है ये हमारी पेक्टोरेलिस चेस्ट की लार्जेस्ट मसल होती है, पेक्टोरेलिस मेजर मसल। ये और जो हमारा डेल्टोइड है इसका एंटीरियर फाइबर, ये दोनों जो है वो मूवमेंट, दोनों फ्लेक्शन मूवमेंट में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये हमारी मेन मसल थी। अभी एक्सटेंशन में जो दो मेन मसल है, पोस्टीरियर फाइबर ऑफ डेल्टोइड एंड लेटिसिमस डॉर्साई। जो एक्सेसरी मसल है उसमें आती है टेरेस मेजर, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकाई। ये एक्सटेंशन मूवमेंट है, उसमें फर्स्ट जो रिस्पॉन्सिबल होती है पोस्टीरियर फाइबर ऑफ डेल्टोइड मसल एंड लेटिसिमस डॉर्साई। ये दोनों मसल मिलकर हमारी एक्सटेंशन में हेल्प करती है। अडक्शन जो हमारे बॉडी के टूवर्ड मूवमेंट होती है उसे हम अडक्शन कहेंगे। पेक्टोरेलिस मेजर और लेटिसिमस डॉर्साई ये दो मेन मसल है जो हमारी अडक्शन में हेल्प करते हैं। अडक्शन, हम इसका एक ये न्यूमोनिक्स बना सकते हैं कि एडक्शन यानी ऐड करना, ऐड मतलब बॉडी के टूवर्ड जो ऐड करते हैं उस मूवमेंट को हम अडक्शन कहेंगे। उसमें ये दोनों मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती है जो मेन मसल है। और एक्सेसरी मसल्स में आती है टेरेस मेजर मसल, कोरेकोब्रेकियालिस मसल, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकाई, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकाई। इनमें हमारी दो मसल्स, मेन मसल्स रिस्पॉन्सिबल है वो थी पेक्टोरेलिस मेजर मसल जो हमारे चेस्ट एरिया में होती है, और लेटिसिमस डॉर्साई, ये हमारी लेटिसिमस डॉर्साई। आउटवर्ड फ्रॉम द बॉडी जो मूवमेंट होता है उसे हम अबडक्शन कहेंगे। उसमें जो मसल्स होती है सुप्रास्पाइनेटस मसल, डेल्टोइड मसल, सेरेटस एंटीरियर मसल, अपर एंड लोअर फाइबर ऑफ ट्रेपेजियस मसल। इसमें कोई भी एक्सेसरी मसल्स नहीं होती है। यहाँ पर जो हमारी मेन मसल है अबडक्शन में वो है हमारी सुप्रास्पाइनेटस मसल। मीडियल रोटेशन जो है इसकी मेन मसल होती है सब स्कैपुलैरिस मसल, और जो एक्सेसरी मसल है पेक्टोरेलिस मेजर, एंटीरियर फाइबर ऑफ डेल्टोइड, लेटिसिमस डॉर्साई एंड टेरेस मेजर मसल। लेटरल रोटेशन में हमारी एक मेन मसल होती है जो है पोस्टीरियर फाइबर ऑफ डेल्टोइड मसल, और इसमें एक एक्सेसरी मसल होती है जो है इंफ्रास्पाइनेटस टेरेस माइनर। सर्कमडक्शन में ऊपर जितनी भी मसल है वो सारी मसल मिल करके ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सर्कमडक्शन के लिए। सो द ब्लड सप्लाई ऑफ शोल्डर जॉइंट। तो हमारे शोल्डर जॉइंट को टोटल 4 वेजल्स होती हैं जो सप्लाई करती हैं। एंटेरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेजल्स, पोस्टेरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेजल्स, सुप्रास्कैपुलर वेजल्स एंड सबस्कैपुलर वेजल। अब इनको समझने के लिए आप एक डायग्राम पे ध्यान दीजिए। देखिए, ये एक डायग्राम है एक्सिलरी आर्टरी का, जो हमारी सब क्लेवियन आर्टरी होती है ना उसी का कंटिन्यूएशन होती है हमारी एक्सिलरी आर्टरी, जो स्टार्ट होती है हमारे आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब से और एंड करती है हमारे लोअर बॉर्डर ऑफ टेरेस मेजर मसल पे। ठीक है, और नीचे ये अपनी कंटिन्यू हो जाती है ब्रेकियल आर्टरी में। तो ये जो हमारी एक्सिलरी आर्टरी होती है ना, इसको ये जो पेक्टोरालिस मेजर मसल होती है ना, ये इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट होता है वो मसल के सुपेरियर में होता है, जो सेकेंड पार्ट होता है वो मसल के पोस्टेरियर में होता है, और जो थर्ड पार्ट होता है वो मसल के इन्फेरियर में होता है। तो ये जो थर्ड पार्ट होता है ना, इधर से हमारी अराइज करती है 3 आर्टरीज जो हमारे शोल्डर जॉइंट को ब्लड सप्लाई करती है। डायग्राम पे आप लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो ये देखिए, ये आर्टरी है ना, ये है हमारी एक्सिलरी आर्टरी जो हमें दे रही है एंटेरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, पोस्टेरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, और ये वाली जो आर्टरी है ना, ये है हमारी सबस्कैपुलर आर्टरी। तो ये सारी आर्टरीज मिलके सप्लाई करती है किसे, शोल्डर जॉइंट को। ये आपको दिख रहा है ना, ये हमारा ये शोल्डर जॉइंट, यहाँ पे ये ह्यूमरस, ये स्कैपुला, ग्लोनाइड कैविटी, ये शोल्डर जॉइंट है, और ये इनको यहाँ पर सप्लाई कर रही है। ठीक है, now nerve supply of shoulder joint. There are 3 nerves involved in the nerve supply of shoulder joint, that is axillary nerve, musculocutaneous nerve and suprascapular nerve. तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप एक डायग्राम देखिए ब्रेकियल प्लेक्सस का, जिसमें जहां से ये 3 नर्व्स अराइज हो रही हैं। देखिए, सुप्रास्कैपुलर नर्व कहाँ से अराइज हो रही है? ये जो हमारा अपर ट्रंक है ना, जो कि रूट C5 और C8 के जॉइंट होने से बना है हमारा अपर ट्रंक, इस ट्रंक से निकल रही है हमारी सुप्रास्कैपुलर नर्व। नीचे इसके जो लैटरल कॉर्ड है ना, ये लैटरल कॉर्ड से हमारी निकल रही है मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व, और ये जो पोस्टीरियर कॉर्ड होता है ना ब्रेकियल प्लेक्सस का, यहाँ से निकलती है हमारी एक्सिलरी नर्व। ये तीनों नर्व मिलके हमारे शोल्डर जॉइंट को नर्व सप्लाई करती है। ठीक है, द स्टेबिलिटी ऑफ द शोल्डर जॉइंट।
तो ये जो हमारी शोल्डर जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है ना, ये मेजरली 4 मसल से प्रोवाइड होती है, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरेस माइनर एंड सबस्कैपुलरिस। ये चारों मिलके एक कफ बनाती है शोल्डर जॉइंट के अराउंड और उसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये जो कफ होता है ना, इसी को हम लोग रोटेटर कफ या मस्कुलोक्यूटेनियस कफ भी कहते हैं। ये एक फाइब्रस शीथ होती है जो कि 4 फ्लैटन टेंडन से मिलके बनती है। ये चारों के 4 फ्लैटन टेंडन्स जो ब्लेंड होते हैं कैप्सूल ऑफ द शोल्डर जॉइंट और उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, द मसल विच फॉर्म द कफ अराइज फ्रॉम द स्कैपुला, और ये इंसर्ट करती है हमारे या तो लेसर या तो ग्रेटर ट्यूबरकल्स ऑफ ह्यूमरस में। ठीक है, तो जब ये हमारे शोल्डर जॉइंट को क्रॉस कर रही होती है ना, तो ये फ्लैट हो जाती है, उनके साथ ब्लेंड करती है, एक दूसरे के साथ ब्लेंड करती है, और जो हमारा कैप्सूल होता है ना जॉइंट का, उसमें जाके ये इंसर्ट कर जाती है। तो ये जो शोल्डर जॉइंट होता है, इसको ये हर जगह से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है एक्सेप्ट इंफीरियरली। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो डिसलोकेशन होता है ना ह्यूमरस का, ये कॉमनली एंटेरो इंफीरियर डायरेक्शन में होता है, क्योंकि नीचे से ये जो रोटेटर कफ होता है ये इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करता है। Now the clinical aspect of shoulder joint. The first one is the dislocation of shoulder joint. The shoulder joint is more prone to dislocation than any other joint. This is due to the laxity of the capsule and the disproportionate area of the articular surfaces. Dislocation usually occurs when the arm is abducted. In this position, the head of the humerus presses against the lower unsupported part of the capsular ligament, and dislocation endangers the axillary nerve, which is closely related to the lower part of the joint capsule. Now the second one is optimum attitude. In order to avoid ankylosis, many diseases of the shoulder joint are treated in an optimum position of the joint. In this position, the arm is abducted by 45 to 90 degrees. Now, the aspiration of shoulder joint. The shoulder joint is most commonly approached from the front. However, for aspiration, the needle may be introduced either anteriorly through the deltopectoral triangle or laterally just below the acromion process. Frozen shoulder. Frozen shoulder is a common occurrence. Pathologically, the two layers of the synovial membrane becomes adherent to each other. A patient from 40 to 60 years of age complains of progressively increasing pain in the shoulder, stiffness in the joint, and restriction of all movements, particularly external rotation, abduction, and medial rotation. This can be approached by the physiotherapy and can be treated. Rotator cuff injury. This we had discussed earlier in the stability factor of the shoulder joint, that is musculocutaneous cuff, in which we had learned that there is no strength provided inferiorly to the shoulder joint. So this may cause a rotator cuff injury. Now the bursitis. As we had discussed earlier, the bursa of the shoulder joint. So the inflammation of that bursa causes bursitis. That condition is known as bursitis. Shoulder tip pain. Shoulder tip pain is the irritation of the peritoneum underlying diaphragm from any surrounding pathology causes referred pain in the shoulder. This is so because the phrenic nerve carrying the impulses from peritoneum and the suprascapular nerve both arise from the spinal segment C3 and C. Thank you.